Assalamu alaikum, grade 8 and 9 students. Today we read and discuss about the Helen Keller chapter of syntax book, grade 9. This chapter is very admiring and interesting. It is based on the real story. Let's start reading. Helen Keller. How fortunate are those who are born into this world with two eyes to see all its beauty. But there are some unfortunate people who can neither see nor hear. This world, which is so full of beautiful colors and sweet sounds, appears colorless and dull to these poor souls. What a misfortune! They cannot see the lovely flowers blooming in the garden and hear the birds singing sweet song. They indeed feel very sad for their fate so hard. Worse is the fate of those who can see and hear once and then no more. But they are so courageous and bold that they do not look unhappy. They accept the challenge of their fate and try to live cheerfully. ओके, फर्स्ट पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि जो लोग जिनके पास आइज़ होती हैं वो कितने ज़्यादा खुशनसीब होते हैं कि वो दुनिया की तमाम खूबसूरती देख सकते हैं, और वो लोग कितने ही बदकिस्मत होते हैं जो कि इस दुनिया की खूबसूरती को बिल्कुल ना देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत मुख्तलिफ़ रंगों से भरी हुई दुनिया और प्यारी प्यारे तरह के साउंड्स हैं बर्ड्स के और डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स, ठीक है। और उन लोगों को ये साउंड्स बिना साउंड और बिना ब्यूटीफुल कलर्स के ये लाइफ जो है बहुत ही कलरलेस और डल नज़र आती है। कितनी बदकिस्मती होती है उन लोगों की कि वो खिलते हुए फ्लावर्स गार्डन में नहीं देख सकते, ना ही चिड़ियों को चहचहाना वो सुन सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा बुरा महसूस करते हैं और उनके लिए जो लाइफ है बहुत डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है। और वो लोग और ज़्यादा बदनसीब होते हैं जिनको पहले तो अल्लाह पाक आँखें और सुनने की सलाहियत देता है और उसके बाद वो उनसे छिन जाती हैं, तो वो तो उनसे ज़्यादा बदकिस्मत होते हैं जो बाय बर्थ इन चीज़ों से महरूम होते हैं। लेकिन वो इतने ज़्यादा उनके अंदर हिम्मत होती है और बोल्ड होती है कि वो आप उनको देखें तो वो इतनी ज़्यादा आपको अनहैप्पी नज़र नहीं आते, और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं चैलेंज को, और वो कोशिश करते हैं कि उनको जो डिफ़िकल्टी अल्लाह की तरफ से है उसको फेस करें और एक अच्छी लाइफ गुजारें, ठीक है। among such brave and courageous person, the name of Miss Helen Keller tops the list. इसी तरह के जो बाहिम्मत लोग हैं उसमें मिस हेलन केलर का नाम सबसे ज़्यादा ऊपर है, सबसे ज़्यादा टॉप पर है। आज हम हेलन केलर के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन थी और उनकी लाइफ की क्या स्टोरी थी। हेलन केलर was born in 1880 in the little town in the United States of America. Up to the age of 2, she was quite a normal child. She could see and hear everything. In February 1882, little Helen fell dangerously ill. All felt sorry for her because she became blind and deaf. Her parents looked sad, everybody was unhappy, and the little child felt miserable. ठीक है। हेलन केलर जो हैं वो 1880 में यूनाइटेड स्टेट के एक लिटल टाउन में पैदा हुई, और जब वो 2 साल तक की थी तब तक वो बिल्कुल एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह थी। उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा 1882 में बीमार हुई, बहुत सीरियसली। इसके बाद जो है वो उनकी देखने की और सुनने की सलाहियत से वो महरूम हो गई। उनके वालिदैन बहुत परेशान हुए और हर कोई उन बच्ची के लिए बहुत ज़्यादा नाखुश था, ठीक है। When she was 7 years old, her life suddenly changed. Helen's father asked a lady, Miss Sullivan, to come and look after his blind child. Miss Sullivan had herself become blind when she was a child, but afterwards she got her eyesight back. She thanked God for his kindness to her by helping other blind people and making them happy and content. She started teaching Helen. One day she took Helen to the river bank and put her hand in the water. Slowly she made her write the word water on the sand. She made her do it several times, and thus Helen learned how to spell the word water. She felt very excited because she knew that at last there would be some light in her dark world. जब हेलन 7 ईयर्स की हो गई तो उनकी लाइफ में एक ड्रामेटिक चेंज आया।
वो चेंज किस तरह का था कि जो हेलन के फादर थे उन्होंने एक मिस सुलिवान नाम की जो लेडी थी उनको उनके पास गए और उनको कहा कि उनकी जो ब्लाइंड बच्ची है हेलन, उसकी टेक केयर करें। तो मिस सुलिवान कौन थी? मिस सुलिवान खुद जब बचपन में वो ब्लाइंड थी, देख नहीं सकती थी, लेकिन कुछ टाइम बाद अल्लाह ताला ने उनको बिनाई बख्शी और वो देखने की सलाहियत उनको बख्शी और वो इस चीज़ के लिए अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार थी कि मैं पैदाइशी तौर पे आँखों से महरूम थी और फिर अल्लाह ताला ने मुझे मेरी आँखें वापस दी। तो वो उन्होंने अल्लाह ताला की इस रहमी पर उन्होंने सोचा कि मैं आप लोगों की अदर ब्लाइंड जो अंधे हैं लोग हैं उनकी मदद करूंगी, उनकी हेल्प करूंगी और उनको खुश रहने में उनकी मदद करूंगी। ठीक है, तो इन्होंने स्टार्ट कर दिया टीचिंग करना, हेलन को सिखाना, पढ़ना और लिखना उनको सिखाना शुरू किया। वन डे शी टुक हेलन टू द रिवर बैंक। ये तो ठीक है। एक दिन उन्होंने हेलन को एक रिवर के पास ले गई और वहाँ उस पानी को उन्होंने टच करवाती गई और पानी के ज़रिए पानी टच करवाया और सैंड पर उन्होंने लिखना बताया कि ये जो पानी है इसको हम वाटर कहते हैं और वाटर किस तरह से लिखा जाता है, ये उन्होंने हेलन को प्रैक्टिस करवाई सैंड के ऊपर। ठीक है, और ये उन्होंने काफ़ी टाइम प्रैक्टिस करवाई। तो एट लास्ट जो है हेलन बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्ची थी और वो बहुत जल्दी उसने पिक किया और वो सीख गई कि ये जो चीज़ को मैं टच कर रही हूँ ये इसको वाटर कहते हैं और इसको ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा बच्ची खुश हुई कि मेरी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो अच्छा होना शुरू हो गया है कि मैं कुछ लिख पा रही हूँ, कुछ सीख पा रही हूँ, दुनिया को महसूस कर पा रही हूँ। द वर्क वॉज वेरी स्लो एंड डिफ़िकल्ट बट Miss Sullivan was very kind and patient. Little by little, she taught Helen about mountains and rivers and about history and geography. She even taught her how to count and do sums. ये जो प्रैक्टिस थी बहुत ज़्यादा स्लो थी और डिफ़िकल्ट थी क्योंकि हेलन आपको पता है कि एक नॉर्मल चाइल्ड नहीं थी। किसी भी एक अंधे और बहरे इंसान को सिखाना, ना वो सुन सकता है और ना ही वो देख सकता है, उसको समझाना कि आप क्या बोल रहे हैं और आपको किस तरह से अपनी बात डिलीवर करनी है, ये किसी को सिखाना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था। तो नॉर्मल लोगों से ज़्यादा टाइम टेकिंग था ऑब्वियसली, तो इसलिए इसमें काफ़ी टाइम लगा। लेकिन मिस सुलिवान जो है बहुत ही एक काइंड और सब्र करने वाली खातून थी, तो उन्होंने जो है बहुत अच्छे से ये रोल प्ले किया और आहिस्ता आहिस्ते उन्होंने जो है माउंटेन रिवर के बारे में हेलन को सिखाया, हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में उसको सिखाया। इसके बाद उन्होंने उनको काउंटिंग और सम्स का भी उसको प्रैक्टिस करवाई। ठीक है, व्हेन शी वॉज 8 शी वॉज सेंट टू द स्कूल फॉर blind children. She had forgotten how to speak, but her teacher helped her. She would put Helen's hand on her own lips and let her feel the movement of the lips, and at the time of speaking, she would put Helen's hand on her own lips and let her feel the movement of the lips at the time of speaking. Helen did many exercises like this, and at last, at the age of 10, she was able to speak again. What a joy! She exclaimed. By and by, she learned to read books. These books were printed with raised point instead of letters, and she read them by touching with her finger. In this way, she was able to learn as much as other people could. She passed all her examination easily. She went to college and then to Harvard University. She studied at the university and graduated without difficulty. She proved to be a better student than many others. Her teachers loved and admired her. ठीक है, तो जब हेलन 8 इयर्स की थी तो इनको एक ब्लाइंड बच्चों के स्कूल में भेजा गया और वहाँ गई। तो वहाँ जब वो गई तो तब तो उनको बोलना नहीं आता था, वो भूल चुकी थी कि किस तरह से बात की जाती है। तो उनकी जो टीचर थी उन्होंने उनकी काफ़ी हेल्प की और वो अपने लिफ्ट जब भी कोई बात कहती थी तो वो लिफ्ट का जो मूवमेंट होता था उस पर हेलन की फिंगर रखती थी और उसको बताती थी कि मैं ये बोलना चाह रही हूँ। तो इस तरह की काफ़ी टाइम प्रैक्टिस करने के बाद हेलन भी दोबारा बोलना सीख गई और हेलन बहुत खुश हुई थी, वो दोबारा उनको बोलने की शायद उनको मिल गई। ठीक है, फिर उन्होंने काफ़ी बुक्स रीड की और जो बुक वो रीड करती थी तो ज़ाहिर उनको नज़र तो नहीं आता था, लेकिन वो बुक्स कुछ डिफरेंट होती थी। उस बुक्स में जो लेटर्स आपके पास इस तरीके से लिखे हुए हैं वो ऐसे नहीं होते थे, वो
उभरे हुए होते थे, बुश टाइप के, लाइक जिसको वो फील करके उसको फील करती थी कि वो लेटर क्या है, उस पर ऐसे हाथ घुमा के तो उनको पता चलता था कि ये एफ़ है, ये क्या है। वो उस पर स्पेल करके समझती थी कि ये इसकी क्या लिखा हुआ है, और इस तरह से उन्होंने प्रैक्टिस की और उन्होंने तमाम एग्ज़ामिनेशंस बहुत अच्छे नंबर से क्लियर किए, और बाकी बच्चे जिनकी आइज़ होती हैं उससे ज़्यादा उन्होंने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया। ठीक है। In 1956, this wonderful lady visited Pakistan. She was 76, but still very active. Pakistani people gave her a warm welcome. She came to our country to help the blind and the deaf. She addressed many gatherings in Karachi and visited the school for the blind, deaf and dumb. What a nice school, she exclaimed. How wonderful it is to be with you, my dear sons and daughter. Always be happy and cheerful. Never curse your faith. You can do everything in this world, she said to the students of the school, and admired heartily all the ladies who were looking and teaching their voluntarily with so much zeal and selfless affection. ठीक है। 1976 में उन्होंने पाकिस्तान में विज़िट किया, और वो तब भी बहुत एक्टिव थी, और उनको बहुत पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही वार्म वेलकम दिया गया। उन्होंने ब्लाइंड और डेफ जो पाकिस्तान में स्कूल से उनको विज़िट किया, और बहुत सारे जगह पे उन्होंने स्पीच भी दी, और उन्होंने जो है ब्लाइंड डम स्कूलों को विज़िट करने के बाद बहुत ही उस स्कूल की तारीफ़ की, और उनको ये बताया कि उनको एक हौसला दिया कि लाइफ में आप जो भी करना चाहते हैं कुछ भी नामुमकिन नहीं है, आप मेहनत करते रहें और खुश रहें, और अपने फेथ पे मजबूत रहें। अल्लाह ताला की तरफ से ही सारी मुश्किलात हैं, लेकिन कोई भी चीज़ इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर हम अपनी पूरी कोशिश से करें तो अल्लाह पाक मदद करते हैं, और ऐसे लोग जो देख और सुन नहीं सकते उनके पास ज़्यादा बाकी चीज़ों की सलाहियत होती है। अब ये देखिए चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एक्सपेक्ट से कि ये रियल स्टोरी है, और इससे हमें ये भी सबक मिलता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों से जो मायूस हो जाते हैं, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपना अल्लाह पाक मायूसी को बिल्कुल, मायूसी एक कुफ़र है, अल्लाह पाक नापसंद फरमाता है इसको। तो हमें इससे सीखना चाहिए कि ना वो बच्ची देख सकती थी ना सुन सकती थी, लेकिन मुसलसल मेहनत से उसने कितना बड़ा नाम कमाया जो आज तक पूरी दुनिया में है। इस पे मूवीज़ भी बनी हैं, और मैं एक लिंक आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप इसको ज़रूर वॉच आउट कीजिएगा। तो उस मूवी में आपको दिखाया गया है कि इस जो बच्ची ने रोल प्ले किया है हेलन केलर का, उसने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है, और उसमें सुलेमान का रोल जिसने प्ले किया है वो भी आप देखेंगे कितनी मुश्किल डिफ़िकल्टी से उनको सिखा रही हैं। और ये बच्ची जब शुरू में ब्लाइंड हुई तो ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी थी, इसको बिल्कुल नहीं समझ आता था कि क्या चीज़ क्या है, वो हर चीज़ तोड़ करती थी। फिर मम्मी सुलेमान ने इस पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया। ये मूवी इस पे बनी हुई है रियल स्टोरी बेस पे, आप इसको उधर वॉच आउट करें और इससे सीखें। ठीक है, थैंक यू।